Hello students, today we are going to start with our next practice set, that is practice set 1.3. Before that we will see few concepts. First, subset. If A and B are two sets and every element of set B is a member of set A, then B is a subset of A. इसका मतलब ये कि अगर आपके पास दो सेट दिए हुए A एंड B और B के सारे एलिमेंट्स A के मेंबर है, तो ऐसे सेट को हम लोग क्या बोल सकते हैं? B इज़ अ सबसेट ऑफ A. फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सेट बी 2 4 6 8. तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि सेट बी के जो सारे एलिमेंट्स हैं वो सेट ए में प्रेजेंट है, तो ऐसे सेट को हम लोग क्या बोल सकते हैं? सबसेट बोल सकते हैं. दैट इज़ नथिंग बट एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज प्रेजेंट इन सेट ए, सो बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए. एंड सिम्बॉलिकली इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए. और ये जो सिंबल दिख रहा है आपको, ये सिंबल है सबसेट का सिंबल. तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी? नहीं बोल सकते. वाई? बिकॉज ए के सारे एलिमेंट्स बी में नहीं हैं. एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज़ नॉट प्रेजेंट इन बी, देयरफॉर ए इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ बी. अनदर एग्जाम्पल, सेट एन इक्वल टू collection of natural numbers I, collection of integers. Now in this two sets, set A n and set I, now which is the subset of other? So how you can say? N collection of natural numbers. Natural numbers start from 1. I collection of integers. Integers means positive and negative both. So the n set starts with 1 2 3 and goes on. I set starts with 0 1 2 3 dot dot dot, and here -1 -2 dot dot. So now you can say that all the elements, each and every element of set n are present in set I. सेट n के सारे एलिमेंट सेट I में है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि सेट n इज द सबसेट ऑफ सेट I. लेकिन क्या सेट I n का सबसेट है? नॉट पॉसिबल. ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ I इज नॉट प्रेजेंट इन सेट n. दैट्स व्हाई I is not the subset of n, but n is the subset of I. So now here you have completed with the subset. Your next part, that is Venn diagram. Now what is Venn diagram? Venn diagram is a process to represent the sets. For example, set A 1 2 3 4. Represent in Venn diagram. So represent of this set in Venn diagram. Give the name of the set, set A. What are the elements? 1 2 3 4. So in this way you can represent sets in the form of Venn diagram. If I take another set, that is set B 1 2 3 4 5 6 7 8. Now if I want to represent set A and set B both in Venn diagram form, so how you can represent? Set A, which elements? 1 2 3 4. 1 2 3 4. Set B. Now already 1 2 3 4 has been taken, so 1 2 3 4 is already written there. You have to only write 5 6 7 8. So in this way you can represent any sets in the form of Venn diagram. Next part is universal set. Now what is universal set? A set which contains all the elements of all sets is known as universal set. इसका मतलब ये कि ऐसा सेट
जिसमें सारे सेट के सारे एलिमेंट्स आते हो, उस सेट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, यूनिवर्सल सेट बोल सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल सेट ए 1 2 3, सेट बी 1 2 3 7, सेट सी 1 2 3 4 5 6 7 8, सेट डी 2 4 6 8, सेट ई 7 8 5. So now here you can see 5 sets: set A, set B, set C, set D and set E. So here you have to tell which set is the universal set. So as I told you, a set which contains all the elements of all the sets is nothing but universal set. ऐसा सेट जिसमें सारे सेट्स के सारे एलिमेंट्स आते हो उसे हम क्या बोल सकते हैं, यूनिवर्सल सेट बोल सकते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ सेट ए 1 2 3 सेट सी में है बी 1 2 3 7 सेट सी में 1 2 3 7, सी के तो सारे एलिमेंट सी में है। डी 2 4 6 8 2 4 6 8 है। ई 7 8 5 7 8 5। सो नाउ यहाँ आप देख सकते हो कि पांचों सेट में से अगर सारे सेट के एलिमेंट्स कोई एक सेट में है तो वो है सेट सी। कौन सा सेट है, सेट सी। तो इसके लिए हम लोग सेट सी को क्या बोल सकते हैं, यूनिवर्सल सेट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, यूनिवर्सल एंड यूनिवर्सल सेट किससे डिनोट करेंगे हम लोग, कैपिटल यू। किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल यू। नेक्स्ट इज complement of set. Now complement of set, how we will find out complement of set? So आपको complement किसी भी सेट का फाइंड आउट करने बोल सकते हैं। जैसे आपने यहाँ 5 सेट देखा है, सेट ए बी सी डी ई, तो इस पांचों सेट में से आपको किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने बोलेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो लाइन है मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आपको याद रखना है। To find the complement of any set, you have to compare that set with universal set. किसी भी सेट का अगर आपको कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है तो उस सेट को आपको किससे कंपेयर करना है, यूनिवर्सल सेट से कंपेयर करना है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन ये आपको याद रखना है कि जब भी किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है तो उस सेट को किसके साथ कंपेयर करना है, यूनिवर्सल सेट के साथ। फॉर एग्जाम्पल मुझे ढूंढना है सेट ए का कॉम्प्लीमेंट, तो सेट ए का कॉम्प्लीमेंट, तो ए का कॉम्प्लीमेंट मैं ऐसा डिनोट करता हूँ, ए डैश इज नथिंग बट ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट का साइन है। सो ए कॉम्प्लीमेंट, अब निकालता हूं मैं ए कॉम्प्लीमेंट। तो जैसे मैंने आपको बताया कि कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने के लिए उस सेट को आपको किससे कंपेयर करना है, यूनिवर्सल सेट से कंपेयर करना है। तो आपका यूनिवर्सल सेट यहाँ क्या है, सेट सी। सेट सी आपका यूनिवर्सल सेट है यहाँ। तो आप क्या करोगे, सेट ए को सेट सी से कंपेयर करोगे। तो कंपेयर करते हैं, 1 1 चला गया, 2 2 चला गया, 3 3 चला गया, तो बचा क्या, 4 5 6 7 8, 4 5 6 7 8। तो इस तरीके से आपको कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। और एक देखते हैं, समझो वी हैव टू फाइंड आउट बी कॉम्प्लीमेंट। तो बी कॉम्प्लीमेंट, तो बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे, सेट बी को यूनिवर्सल सेट से कंपेयर करोगे। तो सेट बी यहाँ है, यूनिवर्सल सेट यहाँ है, कंपेयर करते हैं। 1 1 कट हो गया, 2 2 कट हो गया, 3 3 कट हो गया, 7 7 कट हो गया, बचा क्या, 4 5 6 8, 4 5 6 8। ये है आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। समझा सबको ना। और एक एग्जांपल देख लेते हैं, डी कॉम्प्लीमेंट अगर आपको फाइंड आउट करना है तो डी कॉम्प्लीमेंट
फाइंड आउट करते हैं। तो डी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने के लिए सेट डी को किससे कंपेयर करेंगे? यूनिवर्सल सेट से। तो सेट डी को यूनिवर्सल सेट से कंपेयर करते हैं। 2 मतलब 1 ऐसे ही रहने वाला है। 4 6 8 तो जो थे वो हमने कट कर दिए, बच क्या गए? 1 3 5 7 1 3 5 7। So clear with the complement of set. Number 1, A, B, C and D sets are given. Which of the following statements are true or false? So now set A, set B, set C and set D are given to you. You have to say which of the following statements are true and false. तो सारे सबसेट के कंडीशंस दिए हुए, आपको देख के बताना है कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। C is the subset of B. C is the subset of B मतलब C के सारे एलिमेंट्स B में होने चाहिए। तो C के सारे एलिमेंट्स B और D है इसमें, B और D नहीं है। C के सारे एलिमेंट्स B में नहीं है मतलब C is not a subset of B, मतलब ये क्या हो गया? फॉल्स। नेक्स्ट, A is the subset of D. A is the subset of D मतलब A के सारे एलिमेंट्स D में होने चाहिए। A के सारे एलिमेंट्स D में होने चाहिए। A के सारे एलिमेंट्स D में नहीं है। A के सारे एलिमेंट्स D में नहीं है, दैट मीन्स A is not subset of D. इसका मतलब क्या हो गया? ये फॉल्स। नेक्स्ट, D is the subset of B मतलब D के सारे एलिमेंट्स B में होने चाहिए। D के सारे एलिमेंट्स B में होने चाहिए। A और E है नहीं है, क्योंकि A और E B में नहीं है, दैट मीन्स इट इज नॉट अ सबसेट। नॉट अ सबसेट मीन्स फॉल्स। D is the subset of A. D is the subset of A मतलब D के सारे एलिमेंट्स A में होने चाहिए। A और E है, A और E है इसमें, दैट मीन्स D is the subset of A. ट्रू। नेक्स्ट, B is the subset of A मतलब B के सारे एलिमेंट्स A में होने चाहिए। तो B के सारे एलिमेंट्स C D E F नहीं है मतलब B is not a subset of A. फॉल्स। नेक्स्ट, C is the subset of A मतलब C के सारे एलिमेंट्स A में होने चाहिए। B और D है, तो C के सारे एलिमेंट्स A में है, दैट मीन्स इट इज अ सबसेट। इट इज अ सबसेट मीन्स इट इज ट्रू। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2, शो सेट X एंड सेट Y यूजिंग वेन डायग्राम। तो X सेट आपको रूल मेथड में दिया है, तो मैंने आपको पीछे प्रैक्टिस सेट में बताया था कि जब भी कोई भी सेट रूल मेथड में दिया होगा तो सबसे पहले आप उसे किस में कन्वर्ट करोगे? लिस्ट मेथड में। कन्वर्ट इट। क्या कंडीशन दिया है? नेचुरल नंबर्स, ठीक है। X 7 से बड़ा और 15 से छोटा। X इज ग्रेटर देन 7 एंड स्मॉलर देन 15। तो ऐसे नंबर्स जो 7 से बड़ा और 15 से छोटा। तो 7 से बड़ा क्या है? 8 9 10 11 12 13 14। क्यों? 15 से छोटा बोला है, तो 7 से बड़ा ले लिया, 15 से छोटा ले लिया। तो ये आपके सेट X के कलेक्शन हो गए। अब इसको वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, तो वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट कर देते हैं। सेट का नाम दो, 8 9 10 11 12 13 14। Second one, again it is in rule method. So first convert it into list method. Belongs to natural numbers. Y is a prime number 1 to 20. 1 to 20 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर आते हैं, स्टार्ट करते हैं। 1 प्राइम नंबर नहीं होता है, 2 प्राइम नंबर होता है, 3 प्राइम नंबर, 4 नॉट अ प्राइम नंबर, 5 प्राइम नंबर, 6 नॉट अ प्राइम नंबर, 7 प्राइम नंबर, 8 नॉट अ प्राइम नंबर, 9 not a prime number, 10 not a prime number, 11 12 13 17 and 19. These are all your prime numbers. Now represent it in the Venn diagram. 2 3 5 7 11 13 17 and
90. Question number 3. Universal set has been given to you. Set P has been given to you. What they have told you? Universal set, P set and P complement. तो कॉम्प्लीमेंट निकालना हमने सीखा था. तो आपके पास यूनिवर्सल सेट है, पी सेट है, लेकिन पी कॉम्प्लीमेंट आपके पास नहीं है. तो सबसे पहले आप क्या करोगे? पी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करोगे. तो स्टार्ट फाइंडिंग पी कॉम्प्लीमेंट. तो पी कॉम्प्लीमेंट ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा? मैंने आपको बताया था, जिस भी सेट का कॉम्प्लीमेंट ढूंढना है उसे यूनिवर्सल सेट से कंपेयर करेंगे. तो पी कॉम्प्लीमेंट ढूंढना है मतलब पी सेट को यूनिवर्सल से कंपेयर करते हैं. 1 1 कट हो गया, 3 3 कट हो गया, 7 7 कट हो गया, 10 10 कट हो गया. जो बचे हुए लिखते हैं. 2 3 और 7 कट हो चुका है. 8 9 10 कट हो गया है. 11 एंड 12. तो जो कट हो गए थे वो हमने नहीं लिखा. अब आपके पास यूनिवर्सल सेट भी है, पी सेट भी और पी कॉम्प्लीमेंट भी. इसे किस में रिप्रेजेंट करना है? वेन डायग्राम में. सो स्टार्ट रिप्रेजेंटिंग इट. तो सबसे पहले जिसमें कम एलिमेंट है उसे रिप्रेजेंट कीजिए. दैट इज नथिंग बट 1 3 7 10. तो 1 3 7 10. हाँ, वन मोर, ये आपका हो गया सेट पी. हाँ, वन मोर थिंग जो मैं आपको बताने भूल गया था कि यूनिवर्सल सेट वेन डायग्राम में हमेशा आप रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करोगे. किससे रिप्रेजेंट करोगे? रेक्टेंगल से. यूनिवर्सल सेट वेन डायग्राम में ऑलवेज रिप्रेजेंट इन रेक्टेंगल. तो रेक्टेंगल में रिप्रेजेंट कर दें. 1 3 7 10 हो गया. बचा क्या है? 2 8 9 10 हो चुका है. 11 2 8 9 11 एंड 12. ये कौन सा सेट लिखा आपने? पी कॉम्प्लीमेंट. तो यहाँ लिख दीजिए पी कॉम्प्लीमेंट. नाउ सेकेंड वन, वेरीफाई पी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट. मतलब पी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू पी. ये आपको प्रूफ करना है. तो काफ़ी सिंपल है. सबसे पहले पी कॉम्प्लीमेंट है हमारे पास यहाँ, उसे लिख लेते हैं. पी कॉम्प्लीमेंट क्या है? 2 8 9 11 12. पी सेट भी है हमारे पास. पी सेट क्या है? 1 3 7 10. इसे दे दो 1. अब क्या बोला है? पी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ढूंढो. तो पी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट तो मैंने बताया था, जिसका भी कॉम्प्लीमेंट ढूंढना है उसे यूनिवर्सल सेट से कंपेयर करना है. तो हमें अभी किसका कॉम्प्लीमेंट ढूंढना है? पी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट. तो पी कॉम्प्लीमेंट क्या है? यहाँ. इसका कॉम्प्लीमेंट ढूंढने के लिए क्या करोगे? इस सेट को यूनिवर्सल सेट से कंपेयर करेंगे. तो स्टार्ट कंपेयरिंग इट. पी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट. स्टार्ट कंपेयरिंग. पी कॉम्प्लीमेंट को यू से कंपेयर करो. 2 8 9 11 12 कट. 2 8 9 11 12 कट. क्या बचा? 1 3 7 और 10 बचा. इसे दे दो इक्वेशन नंबर 2. अब 1 एंड 2 में आप देख सकते हो कि इसमें भी 1 3 7 10 है और इसमें भी 1 3 7 10 है. मतलब अगर एलिमेंट सेम होते हैं तो वो क्या होते हैं? इक्वल सेट्स होते हैं. क्या होते हैं? इक्वल सेट्स. तो फ्रॉम 1 एंड 2 P इज इक्वल टू P कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट. और यही आपको वेरीफाई करना था, तो वो हमने वेरीफाई कर दिया. क्वेश्चन नंबर 4. सेट ए 1 3 2 7. राइट द 3 सबसेट्स ऑफ ए. आपको एक सेट दिया हुआ, उसके 3 सबसेट आपको बनाने अपने मन से. तो बहुत सारे बनेंगे, आप कोई भी 3 बनाइए. तो इस सेट के छोटे छोटे सेट्स बनाइए तो सबसेट बन जाएगा. जैसे कि मैं बनाता हूँ 1 3. दूसरा आप बना सकते हो 2 7. और आप बना सकते हो 1 3 7. तो ऐसे बहुत सारे बनेंगे. इस सेट्स के छोटे छोटे सेट्स बनाने, दैट इज सबसेट ऑफ ए. तो 3 ही बनाने बोले थे, हमने कंप्लीट कर दिया. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. राइट द सबसेट रिलेशन बिटवीन ऑल दिस सेट्स.
ये जितने भी सेट्स दिख रहे हैं इनके बीच में कौन किसका सबसेट है वो आपको बताना है। तो सबसे पहले P इज द सबसेट ऑफ पुणे। तो पुणे देखो किसके अंदर आ सकता है, पुणे मध्य प्रदेश में नहीं आएगा, इंदौर में नहीं आएगा, इंडिया, पुणे इंडिया में आएगा, आएगा। सो P इज द सबसेट ऑफ B। और पुणे किस में आ सकता है, पुणे महाराष्ट्र में आ सकता है, यस पुणे महाराष्ट्र में आता है। सो P इज द सबसेट ऑफ H। पहला हो गया। दूसरा MP। MP किसके अंदर आता है, MP इंदौर के अंदर नहीं आता है, MP इंडिया के अंदर आता है। तो MP इंडिया के अंदर आता है, दैट मीन्स M इज द सबसेट ऑफ, M किसका सबसेट है, इंडिया, दैट इज B। फिर MP और किसी के अंदर नहीं आते। फिर I, इंदौर, इंदौर पुणे के अंदर नहीं आता है, इंदौर MP के अंदर आता है, इंदौर में MP आता है। सो इंदौर MP के अंदर आता है, दैट मीन्स I इज द सबसेट ऑफ M। देन इंदौर इंडिया के अंदर आता है, यस आता है, दैट मीन्स I इज द सबसेट ऑफ B। और देखते इंदौर का हो गया। इंडिया, इंडिया किसी के अंदर नहीं आता है, नहीं चलेगा। महाराष्ट्र पुणे के अंदर नहीं आता है, MP इंदौर नहीं आता है, महाराष्ट्र इंडिया के अंदर आता है, दैट मीन्स H इज द सबसेट ऑफ B। तो सबको क्वेश्चन समझा, काफ़ी सिंपल था, सिर्फ कौन किसका सबसेट है वो आपको बताना था। तो जो स्टेट जिसके अंदर आता है या जो स्टेट कौन सी कंट्री के अंदर आता है वो हमने रिप्रेजेंट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2, विच सेट कैन बी यूनिवर्सल सेट। इतने सारे सेट में से आप किसको यूनिवर्सल सेट बोल सकते हो, तो मैंने बताया था यूनिवर्सल सेट मतलब ऐसा सेट जिसमें सारे एलिमेंट्स आ जाते हो। तो इसमें से कौन सा ऐसा सेट है जिसमें सारे आ जाते हो, इंडिया, सेट बी, वाई, क्योंकि ये सारे पुणे मध्य प्रदेश इंदौर महाराष्ट्र किसके अंदर आता है, इंडिया के अंदर, दैट्स वाई सेट बी इज यूनिवर्सल सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विच सेट ऑफ नंबर्स कुड बी यूनिवर्सल सेट। आपको कुछ सेट दिए गए, इसमें से आप बताओ कि कौन सा ऐसा एक सेट लोगे जिसमें सारे आ जाएंगे। तो सबसे पहले मैं इसको थोड़ा लिस्ट मेथड में लिखता हूँ। सेट ए, सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल मतलब 5 का टेबल लिखिए, मल्टीपल ऑफ 5, तो 5, 10, 15। सेट बी मल्टीपल ऑफ 7, 7 का टेबल लिखिए। सेट सी मल्टीपल ऑफ 12। अब ये तीनों सेट हमने लिस्टिंग मेथड में लिख दिया। अब आपको ऐसा सेट बताना है जिसमें ये सारे आते हो, तो जिससे हम यूनिवर्सल सेट बता पाए। तो ये सारे नंबर के साथ आप देखोगे तो ये सारे नंबर्स नेचुरल नंबर के सेट में आ जाएंगे, ये सब नेचुरल नंबर्स में आ जाते हैं। ये सारे होल नंबर्स के सेट में भी आ जाएंगे, ये सारे इंटीजर्स में भी आ जाएंगे। तो नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स कैन बी द यूनिवर्सल सेट, क्योंकि ये सारे नंबर्स नेचुरल नंबर्स में भी आते हैं, होल नंबर्स में भी आते हैं, इंटीजर्स में भी आते हैं। नेक्स्ट, P इज द सेट ऑफ इंटीजर्स विच इज मल्टीपल ऑफ 4। तो P मल्टीपल ऑफ 4 है, मतलब 4 का टेबल लिखना है आपको। T सेट ऑफ ऑल इवन स्क्वायर नंबर्स, सारे इवन स्क्वायर नंबर मतलब 2 का स्क्वायर 4 ऐसा। तो इस तरीके से ये सेम क्वेश्चन है इसके तरह। इसमें भी जो भी आप कलेक्शन करोगे वो सब नेचुरल नंबर में आएंगे, वो सब होल नंबर्स में आएंगे और वो सब इंटीजर्स में भी आएंगे। तो कैन बी द यूनिवर्सल सेट। लास्ट क्वेश्चन, दैट इज लेट ऑल द स्टूडेंट्स इन ए क्लास बी यूनिवर्सल सेट। जितने भी स्टूडेंट्स है क्लास में, यूनिवर्सल सेट। टोटल स्टूडेंट्स इन क्लास। सेट ए,
सेट ए में क्या लेने बोला है, हु सिक्योर 50% और मोर मार्क्स इन मैथमेटिक्स, स्टूडेंट्स हु स्कोर 50% और मोर इन मैथ्स। तो राइट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, तो आपको क्या लिखने बोला है, सेट ए का कॉम्प्लीमेंट। तो सेट ए का कॉम्प्लीमेंट में आप क्या लिखोगे, तो मैंने कॉम्प्लीमेंट करते हुए आपको क्या बताया था कि जिस भी सेट का कॉम्प्लीमेंट ढूंढना है उसे यूनिवर्सल सेट से कंपेयर करना है। तो सेट ए में कौन से स्टूडेंट्स आ गए जिन्होंने 50% या मोर, मतलब उससे ज्यादा। तो सेट ए में 50% या मोर मार्क्स स्कोर करने वाले मैथ्स में आ चुके हैं। तो कॉम्प्लीमेंट में कौन आएंगे, तो कॉम्प्लीमेंट में आएंगे स्टूडेंट्स who score 50% less, students who score less than 50%, करेक्ट। क्यों, सेट ए में कौन से स्टूडेंट्स आ गए जिन्होंने 50 या 50 से ज्यादा स्कोर किए। तो ए कॉम्प्लीमेंट में कौन आएंगे, जो ए में नहीं है। तो ए में कौन नहीं है, जो 50 से कम लाए, तो उसे हम किस में लिखेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट में। सो वी आर कंप्लीटेड योर प्रैक्टिस सेट हियर। थैंक यू।